پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمیں 7th کلاس کی ہسٹری کا تیسرا ٹاپک دلی سلطانز پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے 2 لیسن یا 2 چیپٹرز کے ویڈیو بنا کر اس پر اپلوڈ کیے آپ کے لیے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اچھی طرح پڑھ کے پھر اس کو اچھی طرح سمجھ پاؤ گے۔ تو ہمیں آج پڑھنا ہے دلی سلطان یا کنگز آف دلی۔ دیکھیے، دہلی جو تھی یہ ایک سلطنت تھی، یہ ایک کنگڈم تھی، لیکن 12th سنچری جو ہے 12th سنچری تک دہلی کا ایز سلطنت یا ایز کنگڈم کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ پہلے 2 چیپٹرز میں آپ نے دیکھ لیا کہ دہلی کوئی مرکز نہیں تھا، بلکہ جو کاویری ڈیلٹا تھا یہ بہت ہی بڑا کنگڈم تھا، بہت ہی بڑا مرکز تھا، بہت ہی بڑا سینٹر تھا۔ لیکن 12th سنچری کے بعد دہلی کا ذکر ملتا ہے، اس سے پہلے دہلی کی اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ پیارے بچوں، تومار اور چوہان کے دور میں دہلی ایک اہم سینٹر کے روپ میں ابھر گئی۔ یہ تومار اور چوہان کے دور جو تھے، یہاں پر دہلی ایک اہم کمرشل سینٹر کے دور میں ابھر گئی۔ یہاں پر بہت سے جین مرچنٹس رہتے تھے، انہوں نے اس شہر میں بہت سے مندر بنائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوائنز بھی منٹ کیے جاتے تھے۔ تو یہ کوائنز جو تھے ان کا نام تھا ڈلی وال۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ایریا میں ان کی سرکولیشن ہوا کرتی تھی۔ دہلی سلطنت جو سب کنٹیننٹ میں ایک بڑی حکمرانی تھی کی راجدھانی دہلی 13th سنچری میں بنا دی گئی۔ جس جگہ کو ہم آج دہلی کہتے ہیں، اس کو بنانے میں دہلی کے سلطانز یا دہلی کے جو کنگز ہیں ان کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ہم رولرز آف دہلی۔ دہلی پر کن کن رولرز نے حکومت کی۔ تو فرسٹ آف آل دہلی پر راجپوت ڈائناسٹیز نے حکومت کی۔ ان کا نام ہے توماراز اور چوہاناز۔ تومارا میں اننگ پال 1130 سے 1145 تک حکومت کی۔ چوہانز جو تھے ان کا سب سے جو فیمس کنگ تھا پرتھوی راج چوہان، 1175 to 1192 اس کی حکومت تھی۔ اس کے بعد مسلم رولرز جو تھے دہلی پر حکومت کی۔ تو سب سے پہلے ترکش رولرز 1206 سے 1290 تک، قطبین ایبک، شمس الدین التتمش، رضیہ، اونلی فیمیل کنگ۔ تو اس کے بعد غیاث الدین بلبن۔ اس کے بعد آ گئی خلجی ڈائناسٹی، جلال الدین خلجی، علاؤدین خلجی۔ تو یہ 2 کنگز اس خلجی ڈائناسٹی کے تھے۔ بعد میں آ گئی تغلق ڈائناسٹی، یہ بھی مسلم ڈائناسٹی تھی۔ غیاث الدین تغلق، محمد تغلق، فیروز شاہ تغلق۔ ان کے بعد آ گئی سید ڈائناسٹی جو اونلی شیعہ ڈائناسٹی تھی۔ خضر خان ان کا کنگ تھا۔ 1414 سے 1421 تک اس کی حکومت تھی۔ اور لاسٹ پر آ گئی لودھی ڈائناسٹی، بہلول لودھی، 1451 سے 1489 تک۔ تو یہ تھی ڈائناسٹیز جنہوں نے دہلی کے حکمران رہے، جنہوں نے دہلی کو ایکسپینڈ کیا، پورے سب کنٹیننٹ میں اس کی دہلی کو پھیلا دیا، اور دلی سلطنت کو پورے سب کنٹیننٹ میں ایک بہت ہی بڑے ایریا میں انہوں نے اس کو پھیلا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے دہلی کے سلطنت کے بارے میں۔ فائنڈنگ آؤٹ اباؤٹ دا دلی سلطانز، دلی کے سلطانز کے بارے میں، دلی کے کنگز کے بارے میں ہمیں کیسے جانکاری ملتی ہے۔ پیارے بچوں، دہلی کے حکمرانوں کی سرکاری زبان پرشین تھی۔ دربار میں جو اس ٹائم کے لوگ رہتے تھے وہ پرشین میں لکھتے تھے۔ تو
वो कौन से लोग थे, वो सरकारी हाकिम थे, सेक्रेटरीज थे, शायर थे, एडवाइज़र्स थे, ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। तो यही हमें जानकारी देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं दिल्ली के सुल्तानस के बारे में, दिल्ली के किंग्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो लोग थे ये किस तरह अपनी क्रॉनिकल्स या अपनी तारीख किस तरह बनाते थे। तो प्यारे बच्चों, आप इस शक्ल में देखते हो कि इसमें 4 स्टेजेस हैं, यानी देयर आर 4 स्टेजेस। नंबर 1, प्रिपेयरिंग द पेपर, यानी पहले में कागज़ बनाना, दूसरे में राइटिंग द टेक्स्ट, यानी फिर टेक्स्ट को लिखना, तारीख को लिखना। तीसरा जो है, इसमें आप देखते हो यहाँ पर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। गोल्ड या सोना, इसको पिघलाकर जो अहम हरूफ होते हैं, जो दस्तावेज़ होती है, जो अहम पैसेज होता है, इसको हाईलाइट किया जाता था गोल्ड से। इसके बाद इस जो तारीख थी, जो हिस्ट्री थी, इसकी इस पेपर को बाइंडिंग करते थे, तो इस तरह जो हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री बना दी जाती थी। प्यारे बच्चों, ये लोग जो थे, जो तारीखदान थे, वो क्या होते थे? ये ऑथर्स ज़्यादातर शहरों में रहते थे, ये तवारीख इनाम के लिए लिखते थे। प्यारे बच्चों, ये जो तारीखदान थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, तो ये ज़्यादातर शहरों में रहते थे, गाँव में कभी कभार जाते हैं। ये तारीख किस लिए लिखते थे? बादशाह से कोई इनाम हासिल करने के लिए ये तारीख लिखते थे, किंग की तारीख लिखते थे, किंग की तारीफ करते थे। ये अपने वक़्त के सुल्तान को मशवरा भी देते थे कि वो कैसे अपना सोशल आर्डर या बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पर मबनी था बचा के रखें। सोशल आर्डर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोशल आर्डर हम बोलते हैं कि जो भी कोई बादशाह होता था वो ऊंची ज़ात से ही ताल्लुक़ रखता था, जो भी कोई अफसर होता था वो अपने ज़ात से ताल्लुक़ रखता था। बाकी लोग जो थे वो ये समझते थे कि ये बादशाह इसलिए बन गया, ये किंग इसलिए बन गया क्योंकि ये अपनी ही ज़ात में पैदा हुआ है, ऊंची ज़ात में पैदा हुआ है, इसलिए ये इसका बर्थ राइट है। इसके बाद जेंडर डिस्टिंक्शंस में क्या है? जेंडर डिस्टिंक्शन जो है कि उस वक़्त के लोग ये समझते थे कि जो मर्द होता है, जो मेल्स होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, बायोलॉजिकली भी होते हैं सुपीरियर, अकल के एतबार से भी सुपीरियर होते थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन। तो ये जो उस वक़्त के जो मौरिख थे, ये इस बादशाह को, किंग को मशवरा देते थे कि किस तरह अपने सोशल ऑर्डर और जेंडर डिस्टिंक्शंस को बचा के रखें। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि उस टाइम के जो किंग थे उनका किस तरह होता था रिलेशन अपने इस जो लोग थे, रियाया थे, उनके साथ कैसे उनका ये होता था रिलेशन? देखिए, एक 13th सेंचुरी का एक तारीखदान है, फ़खरी मुदब्बिर उसका नाम था। वो एक लिखता है, एक ये इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस लिखता है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस में ये लिखता है, बादशाह अपने सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता है, यानी किंग जो है सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता है। इसी तरह जो सोल्जर्स हैं वो सैलरीज़ के बगैर नहीं रह सकते हैं। सैलरीज़ जो हैं वो पीजेंट्स के टैक्स से हासिल की जाती हैं। पीजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं, वो टैक्स तभी पे करेंगे जब वो प्रॉस्परस हों और हैप्पी हों। ये तभी मुमकिन है जब किंग जस्टिस और ऑनेस्टली डील करे। तो ये जो है इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, उस वक़्त जिस टाइम की हम बात करते हैं 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया, तो यह है रज़िया सुल्ताना, ये इल्तुतमिश की बेटी है, ये किंग बन गई। उस वक़्त के जो मिनहाज सिराज थे, क्रॉनिकलर थे, वो लिखते हैं कि ये एक काबिल और सही किंग हैं,
एक अच्छी बादशाही, अच्छी रानी ही अपने 4 भाइयों के मुकाबले में किंगशिप के लिए सबसे मौजून है, लेकिन साथ ही साथ वो इसकी बादशाही या इसकी किंगशिप के लिए खुश नहीं था, क्योंकि वो एक औरत थी। इस वक्त के नोबल्स भी नाखुश थे, इसलिए रज़िया को थ्रोन से 1240 में हटा दिया गया। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ थाट्स जो हैं मिनहाज सिराज, ये रज़िया सुल्तान या रज़िया के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी के बारे में क्या लिखते हैं। देख लीजिए, ये लिखते हैं रज़िया का किंग बनना सोशल ऑर्डर के खिलाफ था। सोशल ऑर्डर किसने क्रिएट किया है? वो कहते हैं कि सोशल ऑर्डर जो है ये किंग, यानी ये जो सोशल ऑर्डर है ये अल्लाह ने क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया। उनके मुताबिक वुमेन जो है वो मैन की सबॉर्डिनेट यानी मददगार होती है। उनके मुताबिक अल्लाह ने जो रजिस्टर बना लिया है, इसमें वुमेन को मैन के कॉलम में इसके अंडर लिखा गया है। ये थाट जो हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं। रज़िया ने अपने क्वाइनस में लिखा है कि वो इल्तुतमिश की सुल्तान की डॉटर है। ये बात रुद्रमा देवी के साथ कंट्रास्ट में देखा जाता है, जिसने अपने आप को वुमेन होने के बावजूद एक मैन के रूप में जाहिर कर दिया। इसी तरह हम एक और जो उस टाइम की रानी थी जो कश्मीर में 1980 से 1003 तक हुकूमत करती थी, इसका नाम था ददरानी। उनका ये टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दिदा से आया है जो दीदी का मतलब देता है। दीदी का मतलब है एल्डर सिस्टर, जो माने रखती है लवर्ड रूलर, यानी ये वो रूलर है, ये वो किंग है जो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अपनी रियाया है, उनको वो प्यार करती थी, इसीलिए उसको दीदी के नाम से पुकारा जाता था। अगर हम देखेंगे रज़िया को, लेकिन रज़िया ने अपने आप को एक औरत के रूप में जाहिर कर दिया। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली की जो सल्तनत है वो एक गैरिजन टाउन से एक सल्तनत में कैसे तब्दील हो गई। फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर, दिल्ली कैसे एक गैरिजन से एक सल्तनत बन गई। देखिए प्यारे बच्चों, 13th सेंचुरी के स्टार्ट में दिल्ली के हुक्मरानों का कंट्रोल सिर्फ अपने फोर्ट्स तक ही था। वो कभी कभार ही अंदरूनी इलाकों यानी हिंटरलैंड को कंट्रोल करते थे, इसलिए अपनी आमदनी के लिए तुजारत, तोहफे, तहाइफ या लूट खसूट से हासिल जो आमदनी आती थी उसी से गुजारा करते थे। दूसरी बात यह है कि बंगाल और सिंध के गैरिजन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि बगावत, जंग और ख़राब मौसम से नाजुक रास्ते कट जाते थे, जिनसे कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। इसके अलावा दिल्ली की अथॉरिटी को मंगोल्स ने भी चैलेंज किया, जो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमले करते थे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा यहाँ के मुकामी गवर्नर भी बगावत करते थे, इसलिए सल्तनत मुश्किल से उन हालात में बच जाती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली एक्सपेंशन जो थी वो गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के हुक्मरानी में हुई। देखिए उनने क्या किया। पहली कैंपेन में हिंटरलैंड यानी अंदरूनी इलाकों को कंसोलिडेट किया गया। गंगा और यमुना दोआब में जंगल काट लिए गए और यहाँ से पास्टोरलिस्ट जो हैं यानी चरवाहे जो हैं उनको क्या किया गया, उनको यहाँ से निकाल बाहर किया गया। तो जब उनको यहाँ से निकाल बाहर किया गया तो ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए दी गई, ज़मीन किसानों को दी गई, रास्ता बनाया गया और रास्ते के हिफाजत के लिए गैरिजन और किले बनाए गए, फोर्ट्स बनाए गए। अब देखते हैं हम दूसरी एक्सपेंशन। जो दूसरी एक्सपेंशन है
वो किस तरह और कब वजूद में आ गई। दूसरी एक्सपेंशन में बाहर की फ्रंटियर्स को मिलाने की गरज से की गई। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मिलिट्री एक्सपेडिशन साउदर्न इंडिया की तरफ की गई। ये एक्सपेडिशन जो है मोहम्मद तुगलक के दौर में बहुत ही उरूज पर पहुंच गई। इस दौरान फौज ने हाथी, घोड़े और गुलाम यानी जिनको स्लेव्स बोलते हैं इनको पकड़ कर लाए। इसके अलावा उन्होंने हीरे जवाहरात और प्रीशियस मेटल्स भी अपने साथ वो ले आए। मोहम्मद तुगलक के दौर में आखिर तक 150 साल के आसपास हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर किया था। दुश्मन के फौजियों को हराकर शहरों को अपने मातहत कर दिया। जो सल्तनत थी किसानों से टैक्स वसूल करती थी और लोगों को इंसाफ फराहम करती थी। बहुत ही बड़ा इलाका अब दिल्ली सल्तनत के मातहत आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब ये उस टाइम सबसे बड़ी टेरिटरी थी, सबसे बहुत ही बड़ा इलाका था ये उस टाइम का। तो इस बहुत बड़े इलाके को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। प्यारे बच्चों, अब आपके टॉपिक में मस्जिद का जिक्र है, यानी जो ये दिल्ली सल्तनत के 5 जो किंग डायनास्टीज थी वो मुस्लिम रूलर्स थे, इसलिए उन्होंने हर जगह मस्जिदें बनाई। पूरे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने मस्जिद बनाई। मस्जिद आपको मालूम है ये अरबी लफ्ज़ है, अरबिक वर्ड है। इसका मतलब है अल्लाह का घर, जहां मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें नमाज पढ़ी जाती है। नमाज किस तरफ पढ़ी जाती है? किबला की तरफ पढ़ी जाती है। किबला किस चीज़ को बोलते हैं? किबला होता है हम सारे मुसलमान जो हैं मक्का की तरफ, जहाँ पर खाने काबा है यानी अल्लाह का घर है, उसी की तरफ हम सारे मुसलमान रुख करते हैं, अपना मुंह करते हैं, और उसी की तरफ हमारी मस्जिद का भी मुंह होता है, तो उसी की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं। जामिया मस्जिद एक बड़ी मस्जिद होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होकर जुमा की नमाज या ईद की नमाज अदा करते हैं। मस्जिद में नमाज अदा करने से एक तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है प्यारे बच्चों, यानी एक तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। दूसरा यह कि तमाम उम्मत एक साथ खड़ी हो जाती है, भाईचारे का एहसास भी होता है, और ऊंच नीच का कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, दिल्ली के जो किंग्स थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जगह जगह मस्जिदें बनवाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारी मस्जिदें बनाई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद जो है प्यारे बच्चों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, ये मस्जिद कहाँ पर बनाई गई? ये मस्जिद दिल्ली कोहना में बनाई गई। बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी और इसके मीनारों को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने तामीर किया। एक और मस्जिद है प्यारे बच्चों, इस मस्जिद का नाम है बेगमपुरी मस्जिद। ये मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाई। मौत की मस्जिद, सिकंदर लोधी ने इसके मिनिस्टर ने इसको बनाया। जमाली कमाली मस्जिद, इसको 1520 में बनाया गया। इन मस्जिदों में फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर धीरे धीरे तब्दील होता गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के मैंने 2 हिस्से कर लिए। तो पहला हिस्सा जो है ये यहाँ तक है। अगला हिस्सा जो है, अगले हिस्से का अगला वीडियो लेकर मैं अगली बार आपके लिए हाज़िर हो जाऊँगा। तो आप मेरे वीडियो देखते हो, इनको लाइक करना। थैंक यू।